This conference will now be recorded. To add our domain controller to ESXi host, ये चार एक्टिविटी हम परफॉर्म करना चाहते हैं. So I'm going to move ourselves to the domain controller. This is our domain controller. The domain name that we used, I think class.com. Yes, we Yes. have a one domain controller with name of class.com. Meanwhile, let me connect the RDP, not RDP, GUI access of our ESXi host. So the ESXi host IP address is 192.168.1.20, right? So I'm just going to take the GUI access using any browser. Sir, 20 or 28, sir? It's 20. Okay. I thought, yesterday we put manually IP address. No, 20. That is okay, 20. Okay. 99 is our domain IP address, I think, Domain and IP 20 for address. ESXi host. So we just Okay. need to access the GUI using the IP address of ESXi host. Right. Sir. Fine. So this is our ESXi host, and we are able to find the ESXi name is ESXi, and I think we added our ESXi host to the domain member, right? Click on Right. authentication. Under the authentication part, it will give you the name of our domain controller, means Active Directory. तो AD हमने install कर रखा है class.com के नाम से, and we are able to see class.com successfully added in our domain as a domain controller. Clear? Here, I have one questions. Mhm. Like only, as per my understanding, if if domain is not joining, if here is looking some errors, like here looking like during join the domain with the ESXi, any error we can get in how many types of errors we can get, sir? Only one reasons, only connectivity issue, or any other reason, sir, we can receive, Uh, sir? The first one is connectivity issues, and second is related to if you haven't configured the IP address of our preferred DNS and alternate DNS, we are unable to join our ESXi to domain. अगर आपने ESXi host के अंदर अपने domain controller का DNS नहीं establish किया है, तब ये दिक्कत कर देगा. Okay, 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 right, sir. Okay, fine. So let's talk about how we can use and access the virtual machine, access the ESXi host using the domain controller. So in our domain controller, we have already created multiple users. ये अपने पास AD का part है. Let me check. Open Active Directory user and computers. So under the Active Directory user and computers, we have a Tata, Telnet, and AWS and GCP. These all are the users which is available in our domain controllers. So what I'm going to do as per the requirement, हमें क्या करना है? We just need to access our ESXi using the Active Directory user. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We just need to open our ESXi host and click on the host icon. Go to the action. Under the actions, we are able to find permissions. So आप permissions पे click करेंगे. Under the permission, we have a three different built-in users. ये built-in user consider किए जाते हैं, and all the users contain information about all the users contain the role of administrator. ठीक है? इन सभी user के पास जो roles है ना, which is the administrator role. DCUI, the Direct Console User Interface that we discussed, with the help of Direct Console User Interface, we are able to make a changes with the IP address, change the password of Sir, our one system. second, sir. Sir, your voice is gone. 1 second, sir. I think my headset is not working. 1 second. Mhm.
Hello? I can hear you. Yeah, yes, sir. Can you repeat it once again, sir? I was unable to heard you actually about these three users. Okay, so these all are built-in user, means whenever we install whenever we install ESXi host, ठीक है, हम ESXi host जब install करते हैं ना, so it will give us a three built-in user. These all are the built-in user: DCUI and root and BPX user. DCUI Okay. user, as we know that DCUI user के case में, you know that with the help of DCUI user, we are able to access our ESXi host in DCUI format, जिसमें IP address management, reset the password और जो other settings होती है वो हम manage करते हैं. Root जैसे user can help. हमें जैसे हमें आईपी एड्रेसिंग वगैरह चेंजेस करनी है, स्टैटिक आई मीन मैनुअल टू स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक टू डायनेमिक एंड डायनेमिक टू स्टैटिक काइंड ऑफ थिंग्स, राइट Correct, ना? correct, correct, correct. ठीक है And root user, as we know that the meaning of root user is basically can help us to means access the GUI of our ESXi host. And last one is BPX user. BPX is a hidden user. You can say that means we are unable to use it directly. BPX user can perform the task in backend whenever you convert your ESXi, whenever you add your ESXi to the domain control to the vCenter server. मल्टीपल ESXi होस्ट को जब आप vCenter सर्वर का मेंबर बनाते हैं ना, तो इन बैक एंड VPX यूजर कैन वर्क. ओके. And now we wanted to manage our own environment with the help of Active Directory user. हमें क्या करना है? Active Directory user पे task perform करने हैं, right? राइट. So Active Directory user को access करने के लिए we make sure कि you have a much idea about our Active Directory users account. So we यस. just need to click add user, and under the add user we just need to select the username. अपने पास जो user है वो है aws@class.com. You must need to provide the complete information of your user. ठीक है, full information about your user like as a class including with the what we get the UPN suffix. ओके. What you want to make it, we have a number of roles like as no access, read only, and administrator. So as per the requirement you can manage, you can as per the requirement you can use any. आप इसमें से selected या custom role भी assign कर सकते हैं, and you can also just make it root account. I'm just going to make it read only. AWS user responsible to manage just read only. Means आप AWS user से जब भी login करेंगे ना, you are able to get just read only information. ओके. And click add user. We successfully added one user class slash AWS and close it. Is this user will show in Active Directory in DC domain Sorry, controller? which user? जो भी हमने AWS बनाया, ऐड किया, हाँ तो ये हाँ. यूजर जो है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में बना हुआ है या मतलब बन जाएगा एग्जैक्ट सर? एक, नहीं भाई, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर को पहले हमने यूजर ही तो डिस्कस किया था. हाँ जी. HR में AWS GCP, NRT में टाटा एंड टेलनेट. ओके. ये these एचआर जो है all हमारा, organizational एचआर unit और आईटी जो है, ओके, ओयू है. ओके. और both are organizational unit. ओके सर. तो जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में, वो सभी यूजर आप अपने ESXi होस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके सर. ओके. Back to the ESXi host, and now I'm trying to log in. This is we connected with the help of root account, but let me try to connect our ESXi host using the IP address of our, sorry, using the Active Directory user. So 1.20 is our Active Directory, sorry, ESXi host. यहाँ पे हम AWS से login करना चाहते हैं. Just wanted to open AWS user.
ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो ESXi होस्ट एक्सेस किया ना with the help of AWS, and as we know that, as we discussed, AWS is our user of Active Directory. So in this सर यहाँ case, पर सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो हमने डोमेन कंट्रोलर से हमने एक यूजर बनाया था OU के अंदर, तो उसको हमने किस ग्रुप का मेंबर बनाया था? बाय डिफॉल्ट वो किस ग्रुप का मेंबर बनेगा, और हमने कोई उसके अंदर ग्रुप भी ऐड ऑन किया था सर? not required. We are not talking about the group because we are handling our ESXi host, ना कि हम किसी वर्चुअल मशीन को मैनेज कर रहे हैं, राइट? ठीक है सर, ठीक है। So you just need to create a basic user from our domain controller, और even आप उस पे ग्रुप भी मेंशन कर देंगे ना, तो उस ग्रुप का इम्पैक्ट हमारे ESXi होस्ट पे नहीं पड़ेगा, because ESXi is not a type of client operating system. ESXi राइट सर, use as a resource, जैसे प्रिंटर हो सकता है अपने पास, अदर डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो सकती है, as it is ESXi is work just like a resource. ठीक है, so आप कोई भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करेंगे ना, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट इट सर, कंसिडर एज ए रिसोर्स। ओके। हमने ESXi होस्ट को जब यूजर क्रिएट किया था, मींस व्हेन वी एडेड आवर डोमेन कंट्रोलर यूजर टू ESXi होस्ट, वी डिसाइडेड एंड मेक इट मेंबर ऑफ ओनली रीड। So रीड अगर आप ओनली, इसमें कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी टास्क, लेट मी शो यू, आई वांटेड टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन, तो रीड ओनली के परमिशंस है, तो आई डोंट थिंक कि ये हमें अलाउ करेगा टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। www select operating system types and 64-bit. I wanted to proceed with 10 gig of hard drive. Next, finish. You don't have a permissions, right? ये अभी दिखा रहा है VM configuration was rejected. Please see browser console. Browser console in the sense means the user that you use to log in. Clear? राइट सर। So means अगर read only की permissions है, so you are unable to perform any task. You are able to just perform the task of you can see the settings. जो सर settings है वो task इसके आप अंदर हम perform कर यूजर्स की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने यूजर बने हुए हैं? from ESXi host. हाँ जी। नहीं, कोई requirement नहीं है ना, it will breach the security. यस यस, दैट्स व्हाई आई एम So आस्किंग, no. लाइक सपोज जैसे हमने रीड ओनली की परमिशन दे रखी है, तो हम्म उस कंडीशन में आपका यूजर को व्यू करने की परमिशन तो होती होगी कि नहीं होती सर? व्यू करने की भी No, परमिशन नहीं no, होती? no, no, no. In this case, what we need to do, in this case, the real environment, in case of real environment, हमें coordination बना के चलना पड़ेगा डोमेन की टीम से। जी। If we don't have a full rights to manage the domain controller, हमें डोमेन की टीम से coordination करके रखना पड़ेगा, and domain हमें बताएगा कि I just created a one user with name of XYZ, you can access through the ESXi host. Got it what ओके। I'm saying? We don't have any यस। rights to check here how many users are available in our ESXi host, our domain control. ओके। और उसको तो कोई बेनिफिट्स भी नहीं रहता ना, वर्चुअल टीम अलग है, VMware टीम अलग है, और डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी टीम अलग है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि ना कि दोनों आपस में ये कोऑर्डिनेट करें, उनको सेपरेट ही रखना पड़ता है, और कोई बेनिफिट्स भी अच्छा, नहीं है इसका। ओके। सर एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास समटाइम्स जो है एप्लीकेशन टीम रिक्वेस्ट रेस करती है कि जो है पहले मेरे को एक्सेस था और अब मेरा एक्सेस चला गया है। मतलब कहने का मतलब पहले मैं मशीन में लॉगिन कर पा रहा था, लेकिन अब मैं हम्म मशीन में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुड यू प्लीज हेल्प अस टू चेक, आई मीन व्हाई आई एम अनएबल टू लॉग इन माय अकाउंट बेसिकली। सो यू आर टॉकिंग अबाउट ESXi अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ESXi बेसिकली आई मीन जैसे कि ओके, ओके। तो ESXi से हम ओके, तो ओके डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। ओके, ठीक है सर, ठीक है। ओके, कुछ यूजर्स वी सेंटर के तो होते हैं शायद, नहीं अलग चीज है।
ठीक है सर, वो मैं एक बार अलग से पूछूंगा आपसे, देख के एक बार अपने इन्वायरमेंट में कैसा है, उसके अंदर कुछ रिक्वेस्ट हैं तो आई विल शेयर विद यू सर कि क्या रिक्वेस्ट है एग्जैक्टली। तो वो हम्म डोमेन से तो हम लोग नहीं चेक कर पाते क्योंकि हमारे को भी एक्सेस नहीं होता है। एक्टिव डायरेक्टरी टीम अलग है, तो आई थिंक वही चेक करती है। तो हम्म तो अब उस कंडीशन में जो है वो कैसे होगा, वो मैं आपसे एक बार अलग से पूछूंगा सर। नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सर, फॉर कंटिन्यू फॉर दिस। Okay, so this is the concept of our users management, user and permissions management. अगला जो step है ना, we just need to know about the NTP. So NTP is a network time protocol. What happen whenever we establish our NTP server in our environment? The benefits to establish the NTP, जिससे आप अपने environment में जो भी resources लगा रखे हैं ना, like अपने client machine लगा रखा है, multiple client, different operating system based client लगा रखा है, and you want to fix the timing of each and every machine. ठीक है, आप चाहते हैं कि जितनी भी क्लाइंट्स मशीन है उनकी जो टाइमिंग है एक ही रहे, बिकॉज यू नो दैट अगर टाइमिंग चेंज होती है तो कहीं ना कहीं इट विल इम्पैक्ट टू आवर पॉलिसी एग्जीक्यूशन। आप पासवर्ड रिसेट करेंगे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, आप पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट नीड टू मेक श्योर कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी वर्चुअल मशीन है, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सभी का टाइमिंग एक होना चाहिए। या सर, यहाँ पे मैं एक चीज को सर होल्ड करवाना चाहता हूँ कि अभी हमने एक यूजर बनाया था जो कि हम्म एक्टिव डायरेक्टरी में था, उसी का ही हमने एक जो है ESXi में हमने ऐड ऑन कर दिया उसको, और हम्म उसके बाद हमने उसको रीड ओनली की परमिशन दी। सो why do we why do we add this type of user in ESXi? I mean, is it any required, sir? I mean, इन और ESXi में हम यूजर ही नहीं बना रहे ना, ESXi में तो यूजर बनाया नहीं हमने। नहीं, हमने ऐड किया सर। ऐड करके जैसे हमने अभी उसको एक लिमिटेड परमिशन दी रीड ओनली की, तो रियल इन्वायरमेंट में भी ऐसा होता है सर? एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल इन्वायरमेंट, बेस्ड सो ऑन द रियल इन्वायरमेंट एक्टिविटी। तो रीड ओनली की परमिशन का मकसद क्या होता है बेसिकली? सिर्फ जो है जब वहां पे वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, नया इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाएगा, नई वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर पाएगा, और उस वर्चुअल मशीन को भी, जो ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन चल रही है, उसको भी अगर वो नहीं ओपन कर पाएगा, उस पर काम करना चाहे, मतलब कुछ जस्ट एक मॉनिटरिंग करना चाहे उसके अंदर, तो वो सब चीजें नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में उसे सिर्फ रीड ओनली के अलावा भी कोई और परमिशन दी जाती है सर? एन नंबर ऑफ परमिशंस प्रोवाइड की जाती है। रीड ओनली परमिशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि जैसे? यूजर, हमें जस्ट रिसेंटली बंदा हायर किया गया है, हायर किया है हम्म। हमने, एंड वी डोंट नो अबाउट कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना हैंड्स ऑन जानता है। ठीक है, सो उसको हम स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने तक एज ए मॉनिटर इंजीनियर हायर करेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर जस्ट चेक द यूसेज ऑफ सीपीयू एंड रैम। वो सिर्फ वीएम की स्टेटस को चेक करेगा। रीड ओनली का मतलब ये नहीं कि वो टर्न ऑफ या टर्न ऑन नहीं कर पाएगा, राइट? सो इन केस ऑफ रीड ओनली, वो नया इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा ना, वो नई वर्चुअल ओके, मशीन नहीं क्रिएट कर पाएगा। लेकिन पावर ऑन पावर ऑफ कर सकता है वो? पावर ऑन पावर ऑफ के लिए नहीं, पावर ऑन और पावर नहीं ऑफ कर नहीं कर पाएगा। सकता, बट अगर मशीन आपकी टर्न ऑन है ना, तो उसको मॉनिटर कर सकता है, यहाँ पे सीपीयू यूसेज देख सकता है, नंबर ऑफ ओके। स्टोरेज कितने हैं और उनका कंजप्शन कितना है वो देख सकता है ना। लाइक इन दिस केस एनएफएस में हमारे पास 15 गीग स्पेस है और 14 पॉइंट समथिंग गीग स्पेस अवेलेबल है, ये चेक करके वो अपने एडमिन को इन्फॉर्म कर सकता है। ओके। ओके। एडमिन के पास उतना टाइम नहीं है कि इन छोटी छोटी चीजों को देखे मैनेज करें। हम्म। सो स्टार्टिंग हम्म। के डेज में आवर क्लाइंट, जो हमारा जो जो यूजर हमने लॉग इन कर रखा है ऐसे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड रीड ओनली की परमिशन दे रखी है, द रीड ओनली परमिशन बेस्ड यूजर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ओनली फॉर द मॉनिटरिंग पर्पज। ओके। ओके। तो इसके अलावा जो सेकंड स्टेप होता है, जैसे कि उसको 3 and 4 months हो गए, तो उसके बाद उसकी जो परमिशंस है वो कौन कौन सी परमिशन इनहांस की जाती है सर?
sometime we need to make it administrator account, means उसको हम admin की permission दे देते हैं, या फिर जब हम join कर रहे थे तो we have already discussed about कि जब आप join करते हैं किसी भी, sorry, we just need to open root account. जब आप नया domain user add करेंगे ना, so in this case we have a custom option. Action पे जा करके whenever we click on the permissions, और परमिशंस के केस में जब आप यूजर ऐड करेंगे ना, तो दिस इज द कस्टम यूजर, कस्टम परमिशन. आई वांटेड टू ऐड gcp@class.com. gcp is another user of our active directory, and I don't want to select from existing role. I wanted to select from the list. हम इसको alarm या जो भी परमिशन देना चाहते हैं, we just need to make it member. ओके, Select तो सबके कौन कौन जितने भी ये परमिशंस हैं सर, ये जो जितने भी अकाउंट्स नीचे आ रहे हैं ग्रुप, दीज आर लाइक ग्रुप्स काइंड ऑफ, और yes, लाइक व्हाट वी कैन, ESXi group. We can say that these are the ESXi host group. okay, these are the default after like after install the ESXi, right Correct. sir? Correct. ओके, सो इन सब की क्या क्या परमिशंस होती हैं सर? आई मीन इन सब का क्या क्या रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सर? हर उसके बारे में थोड़ा सा बता दो सर। हर एक रोल्स का as per the name suggest like as a alarm, right? आप एक परमिशन देना चाहते हैं जिसमें वो बंदा ये इतने टास्क परफॉर्म कर पाएगा. Acknowledge, create new alert, delete, disable the action, edit and set the status of your alarm. ये सभी पार्ट आपके केवल अलार्म के लिए आएंगे. अगर आपको लगता है कि यूजर हमारा सिर्फ अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकता है, करना चाहिए, तो यू जस्ट नीड टू एडिट दिस पर्टिकुलर सेटिंग. ठीक है. सो दीज ऑल आर द बिल्ट इन सर्विस जिसमें आप ऑथराइजेशन, व्हाट यू वांट टू डू इन ऑथराइजेशन, you want to modify the permission, modify the rules, or you want to just manage, release the permissions. These all are the custom roles. और एक एक रोल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो इट गिव यू द मल्टीपल ऑप्शन, असाइनिंग, कॉन्फ़िगर, डिलीट एंड मूव. अपने यूजर अकाउंट के, अपने ESXi होस्ट की नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए इन तीनों चारों ऑप्शंस को आप असाइन कर सकते हैं. ओके, जैसे मूव करना है तो मूव क्या क्या मूव कर पाएगा सर वो? वीएम मूव को मूव कर इज पाएगा या फिर मतलब फ्रॉम, कुछ और? यस, मूव द वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन नेटवर्क स्विच टू अनदर नेटवर्क स्विच. ओके 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 ओके, राइट राइट, ठीक बहुत है. सारी तो चीजें हैं इसके बेसिकली अंदर। जब जब आप vCenter सर्वर स्टैब्लिश करते हैं ना, तो कभी भी बिल्ट इन यूजर का इस्तेमाल रियल इन्वायरमेंट में नहीं किया जाता. ओके कभी भी बिल्ट इन यूजर का यूसेज नहीं करते. वील ऑलवेज ट्राई टू सेट अप अवर यूजर दैट वी क्रिएटेड थ्रू द एक्टिव डायरेक्टरी. जो आपने एडीसी यूजर क्रिएट किया है ना, उन्हीं एडी जी, के यूजर को ही आप मैनेज करेंगे. ओके, राइट सर, another benefits are another benefits are like as अनदर बेनिफिट्स कि अगर आप ESXi से पासवर्ड भूल भी जाते हैं ना, तो 2 मिनट के अंदर आप रीसेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट डोमेन कंट्रोलर से पासवर्ड. आप अपने एडी को ओपन करेंगे और विद इन मिनट आप अपने एडी के जरिए पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं. करेक्ट. राइट सर, राइट, ओके, दिस इज द ऑप्शन दैट कैन हेल्प अस टू मैनेज द Active Directory user account with ESXi host. Is that clear? राइट सर, Another important points in case of our Active Directory users management, जो अगला point है वो है NTP service. So NTP service, why it is important? NTP is really important for our real-time environment because, for example, this is our ESXi host, and as we know that a single ESXi host must be contain multiple virtual machines. एक ESXi host में multiple virtual machines हो सकते हैं. These all are the virtual machines, and
both are connected to the same ESXi host. Now एक HRE ESXi के ऊपर एक ESXi के ऊपर एक ESXi कितनी मशीन तक हैंडल कर सकता है सर? it's based N on the number of configuration. machines? नो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ESXi डे वन हमने डिस्कस किया था, कैलकुलेट किया था कि हाउ वी कैन डिसाइड कि कितनी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे क्रिएट हो पाएंगी। वो आपके Okay, सीपीयू right. कोर्स और रैम के ऊपर डिपेंड करता है। हार्ड डिस्क को हम नहीं ऐड कर सकते, हार्ड डिस्क को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर स्टोरेज प्रोवाइड करती है, तो शेयर स्टोरेज में तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रैम एंड सीपीयू केवल डिसाइड होता है कि डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आप ऐड कर पाएंगे। जी जी जी, ठीक है सर। Domain come into the picture for NTP services. This is our domain controller, class.com, and every server operating system contain one feature, especially Active Directory contain one feature, NTP. The meaning of NTP is Network Time Protocol. ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इनकी जो टाइमिंग है ना मस्ट बी सेम, और वो पॉसिबिलिटी होती है एनटीपी सर्विस के थ्रू। यू मस्ट नीड टू synchronize time between domain to ESXi होस्ट। ESXi और डोमेन के बीच में टाइमिंग को जो सिंक्रोनाइज करने का काम होता है वो हमारे एनटीपी सर्विस के जरिए किया जाता है। क्लियर? राइट सर। आई एम गोइंग टू इनकेस शो यू अगर द एनटीपी प्रोसीजर। सर्विस एनटीपी सर्विस अगर डाउन है तो टाइम सिंक होना बंद हो जाएगा। Exactly, and it will create a lots of issues related to the application management. तो Done? एनटीपी काम कैसे करेगा सर? आई मीन विल यू शो And सर? I'm going to describe you ना about प्रोसीजर के बारे में ही बात करने वाले हैं। How it can work. NTP is a built-in service of domain controller or server operating system. We just need to activate and assign with our ESXi host and virtual machines as well. ESXi में पहले हम NTP को एक्टिवेट करेंगे एंड फिर वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टी में जाकर के उस NTP सर्विस को अटैच कर देंगे। क्लियर? राइट सर। This is our ESXi host. What you need to do, first of all, activate the NTP service for ESXi host. आप यहाँ पे देखिए, we have one option system. Under the system, we are able to find time and dates. Just need to click on time and date. यहाँ पे NTP settings है, enabled, service status, stop. Edit setting में जाएंगे and we just need to enter the manual NTP service. Start and stop manually. Start and stop with port usage. Start and stop with host. Start and stop manually. So always try to put it start and stop with host। जैसे जैसे ESXi होस्ट को आप ऑफ करेंगे ऑन करेंगे उसके साथ ही साथ ये सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ओके। और ये इसके जो नीचे ऑप्शन है ना एनटीपी सर्वर यानी आपके डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि जो एनटीपी सर्विस है वो हमारे डोमेन पे रन कर रही है, तो वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। क्लियर? राइट सर। टाइप द सर्वर आईपी नेम, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम एंड क्लिक एक्शन, और यहाँ पे एनटीपी सर्विस में जाकर के इसको स्टार्ट कर देना है। एनटीपी सर्विस इज रनिंग प्रॉपरली। अब आपको एक्टिवेट करना है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द वर्चुअल मशीन्स। अंडर द वर्चुअल मशीन क्लिक एक्शन, go to the edit settings. Under the edit setting we just need to click on VM options, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा VMware tools, and under the VMware tool ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन गेस्ट टाइम विद होस्ट ये आपको चेक मार्क कर देना है। ओके।
ठीक है. By using this particular option, we are able to synchronize the timing between domain controller to ESXi और फिर ESXi to our virtual machine. ओके पहले ESXi को कनेक्ट किया हमने डोमेन में, ESXi होस्ट में, और फिर अब ESXi से अपने वर्चुअल मशीन में. राइट. Clear? This is the concept of तो हम इस चीज ESXi. को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक अगर मैं सर्वर में जाके जो टाइम को अगर मैं चेंज करता हूं मैं, तो उस कंडीशन में वीएम पे भी टाइम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. दैट मींस, एम आई राइट? Exactly. तो एक बार हम चेंज करके देखें सर. एक बार वीएम We को ओपन कर लीजिए सर. एक बार अभी क्या टाइम दिखा रहा है वीएम पे? सर इसको हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे. लाइक जैसे कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो है, पीडीसी जो है, वो अगर फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में एडीसी एज ए बैकअप काम करता है. तो उसका एड्रेस अलग होता है हमारा. लेकिन अगर हमने इसमें जो है आपका सिर्फ एक ही एड्रेस सेट किया है, तो उस कंडीशन में हमें सेकेंडरी आईपी भी सेट करना पड़ेगा इसके अंदर, या फिर ये मतलब क्योंकि अगर प्राइमरी फेल हो गया तो इनके बीच में जो क्लाइंट और डोमेन है, इनके बीच में जो टाइम सिंक है वो बंद हो जाएगा. करेक्ट. राइट सर. और वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट तो लॉगिन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी से चला जाएगा, सेकेंडरी से एडीसी से लॉगिन हो जाएगा यूजर. लेकिन अगर हम टाइम सिंक की बात करें तो टाइम सिंक कैसे होगा फिर उस कंडीशन में? क्योंकि टाइम सिंक तो ब्रेक हो जाएगा ना, आई थिंक सो. क्योंकि एनटीपी में तो हमने एक ही एड्रेस सेट किया हुआ है. तो उस कंडीशन में फिर जो है हमें सेकेंडरी आईपी डालना होगा साथ साथ ही, या फिर मतलब एक रियल इन्वायरमेंट में, या फिर जो है आपका फिर कैसे टाइम सिंक होगा सर? क्योंकि अगर प्राइमरी आईपी ही डाला हुआ है हमने तो फिर टाइम सिंक तो होगा नहीं, फिर ट्रबल शूट करना पड़ेगा हमें. नहीं, देखो, टाइमिंग की अगर बात करें ना, तो आप कितने भी डोमेन कंट्रोलर इन्वॉल्व कर लो, ठीक है, 2 एडीसी बना लिया, बैकअप डोमेन कंट्रोलर बना लिया, आपका जो एनटीपी सर्विस है ना, वो सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर में रहेगी, एक सर्वर में रहेगी. ओके. किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट में जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं या बैकअप डोमेन इंस्टॉल करते हैं, यू नो दैट एफएसएमओ रोल्स मिलता है. हाँ जी. 5 अलग 5 अलग रोल्स रोल्स होते हैं. रहते हैं हाँ जी, 5 रोल्स. एफएसएमओ में, जिसमें से कुछ फॉरेस्ट वाइज रहते हैं, कुछ डोमेन वाइड. करेक्ट. जी जी सर. पीडीसी एमुलेटर नाम का एक रोल होता है विच इज कंसीडर एज ए डोमेन वाइड. इज दैट करेक्ट? हाँ जी. राइट सर. राइट. पीडीसी एमुलेटर रिस्पॉन्सिबल होता है एनटीपी की सर्विस को मैनेज करने के लिए. ओके. और पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, पूरे इन्वायरमेंट में केवल एक ही रोल्स रहते हैं. आप उनको एडीसी पे रखना चाहते हैं या आप या उनको पीडीसी पे. पीडीसी पे रखना चाहते हैं या फिर आप अदर कोई डोमेन पे रखना चाहते हैं. ठीक है. यस सर. चाइल्ड पे सो तो नहीं जाते ना सर, लेकिन चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर पे तो नहीं जाते, या तो एडीसी नहीं पे नहीं, जाएगा या पीडीसी पे जाएगा. एडीसी पे रहेगा या पीडीसी पे रहेगा, क्योंकि जी एडीसी मल्टीपल बनाया जा सकता है. ठीक है. एन नंबर ऑफ जी जी. एडीसी कैन एडीसी क्रिएट. वी कैन क्रिएट इन आवर इन्वायरमेंट. लोड के ऊपर डिपेंड कर देगा कितना लोड है हमारे पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर. इज दैट करेक्ट? राइट सर. राइट. ओके. तो ऐसे हम बोल ही नहीं सकते कि कोई अल्टरनेट ऑप्शन है अपने पास.
क्योंकि अगर आपका रूट डाउन हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में सीज करना पड़ेगा रोल को। आपको राइट वो रोल को सीज करना पड़ेगा। आपकी सारी सर्विसेज जो है माइग्रेट हो रही हैं, आपको अपने रोल को सीज करना पड़ेगा ताकि उस रोल की एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। राइट क्लियर? राइट सर राइट ठीक है। नाउ एनटीपी सर्विस की अगर हम बात करें तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को रिफ्लेक्ट करने में। नाउ इट्स 8:13 PM, ये टाइमिंग आ रही है हमें अभी मिल रही है। लेट मी चेक द टाइमिंग ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। 9:32 AM, ठीक है, और ये 23rd कहाँ ऑफ पे शो हो रहा है नवंबर। सर? यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे। ओके ओके सर, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा मेरे स्क्रीन पे छोटा आ रहा था इसलिए। ओके ओके ओके, 9:43 सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू वेरीफाई कि जो आपने टाइमिंग कॉन्फ़िगर की थी उस टाइम पे टाइम को सेटअप किया था या नहीं, बिकॉज इट्स आल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द टाइमिंग। मैनुअल आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो अभी जो अपने पास ये है डेट, और ये हमारे बेस मशीन पे दिखा रहा है कितना, 9:44, करेक्ट। राइट और सर इसको हम डोमेन के साथ ऐड कर दिए, मीन सर्वर के साथ ऐड कर दिए। ओके किया। बैक टू द सर्वर कंट्रोलर। (9:44 AM) यहाँ पे ये टाइमिंग आ रहा है, करेक्ट। राइट सर ओपन services.msc, services.msc, ये आपको एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। It will redirect you on page of our services. NTP की सर्विस को आप करेंगे सेलेक्ट, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। आई थिंक टाइम सिंक होती है सर कि एनपीटी होती है सर? नहीं, विंडोज टाइमिंग होती है दिस वन। ओके राइट क्लिक एंड रीस्टार्ट इट। ठीक है, ये ये सर इसमें टाइमिंग क्यों जा रही है टाइमिंग ऑटोमेटिक? ये किस में जा रही है? ट्रिगर्ड में? ओके, ये ट्रिगर्ड में ही रहती है क्या सर? हाँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइमिंग है ना। हम्म तो डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज टाइमिंग फॉर मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल क्लाइंट्स एज वेल। तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिक टर्न ऑन रहेगी। ओके, एक तो सर ऑटोमेटिक होता है और एक ट्रिगर्ड स्टार्ट होता है और एक डिले होता है, डिले स्टार्ट। करेक्ट करेक्ट। तो तीनों में डिफरेंस क्या हो जाता है सर? अगर हम इसमें बात करें ना, सो ऑटोमेटिक स्टार्ट, डिलेड स्टार्ट, जब तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सर्विसेज टर्न ऑन नहीं हो जाती, आपकी ये सर्विस ऑन नहीं होगी। क्योंकि अगर इमीडिएटली विंडोज के साथ अगर ये टर्न ऑन होती है तो कहीं ना कहीं बूटिंग प्रोसेस को डाउन करेगा। ओके ठीक है, बट अगर डिलेड है तो पहले ये वेट करेगा कि हमारा ओएस टर्न ऑन हो, ओएस की सारी सर्विसेज टर्न ऑन हो, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली टर्न ऑन, फिर उसके बाद ये टर्न ऑन होगा। मैनुअल, यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनुअल। मैनुअल के केस में आप रिस्पॉन्सिबल है डिसेबल, यानी सर्विस को अभी आप यूज नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू इंस्टॉल इट लेटर, आप इसको ओके बाद में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद डिसेबल्ड। और इसमें एक ऑटोमेटिक आ रहा है सर? हाँ, ऑटोमेटिक विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके ओएस के साथ ही साथ वो टर्न ऑन हो जाएगी while booting। सर, इस पे हमने क्लिक किया था जब इसी सर्विस पे विंडोज टाइमिंग पे क्लिक कीजिए सर एक बार। इस स्क्रॉल डाउन कीजिए सर उसके अंदर। इसमें सर डिले स्टार्ट दिखा रहा है लेकिन नीचे ट्रिगर्ड स्टार्ट दिखा रहा है सर ब्रैकेट में, ऐसा क्यों? इसमें Sorry, डिलेड स्टार्ट है और no, अंदर जो triggered है start बाहर से because देखिए triggered start means automatic। तो फिर The meaning of नीचे अलग से। triggered
नहीं समझ पा रहे हैं आप. Triggered is start, it means automatic is started. ओके, तो फिर Delayed is start. सभी सभी सर्विसेज में हम्म. ऑटोमेटिक के आगे ब्रैकेट में ट्रिगर्ड स्टार्ट क्यों नहीं लिखा हुआ सर? नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट को वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि वो ट्रिगर्ड स्टार्ट मींस ओएस के साथ इंस्टॉल हो जाएगी. ओके सर। जब आपका ओएस रन होगा तो ऑटोमेटिक ये सर्विसेज अपने आप स्टार्ट हो जाएगी. डिलेड स्टार्ट का मतलब ये है कि यू डोंट वांट टू कंज्यूम द स्पेस. आप अपने बूटिंग प्रोसेस का टाइम और बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे हार्डवेयर नहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी भी सर्विस के लिए. दैट टाइम डिलेड. पहले ओएस टर्न ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी सर्विसेज टर्न ऑन होगी. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन बोथ. ओके सर, ओके। क्लियर? राइट सर। ठीक है. सो वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट द सर्विस ऑफ आवर डोमेन एनटीपी back to the ESXi host or ESXi host के केस में what you need to do, we selected the timing for ESXi host and open virtual machine, action, edit settings, VM option, VMware tools और आपको ये जो टाइमिंग है ना इसको सिंक्रोनाइज कर देना है. ठीक है. सिंक्रोनाइज करने के बाद जस्ट नीड टू सेव द पेज. और अब जो आपकी वर्चुअल मशीन है ना इसकी जो टाइमिंग है हमारे ESXi होस्ट के साथ यानी डोमेन कंट्रोलर के साथ ऐड होनी चाहिए. बिकॉज so NTP service responsible to manage the timing of our entire virtual machine which is available in ESXi. But जब आप NTP सर्विस को एक्टिवेट करते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं ना we must need to restart the ESXi host. हमें ESXi होस्ट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पे. क्लियर? ओके, तो अभी यहाँ पे टाइम मैच नहीं हुआ ना सर? नहीं. मैनुअली देखिए, सिंक भी कर रहे हैं तब भी नहीं होगा सर? नहीं आप ESXi को ऑन नहीं किया, रीस्टार्ट नहीं किया ना. वी नीड टू रीस्टार्ट द ESXi होस्ट. ओके, श्योर सर। वी एक्टिवेटेड बट वी हैवंट रीस्टार्ट. और इसको एनटीपी सर्विस को एक्टिवेट होने में ना इट विल टेक टाइम ऑफ 30 मिनट्स सम टाइम. ओके, 0 to 30 मिनट. कभी कभी इमीडिएटली इम्पैक्ट इसका मिल जाता है, कभी कभी कम से कम हाफ एन आवर का वेट करना पड़ता है टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग. क्लियर? राइट सर। तो हम रियल इन्वायरमेंट में ESXi को जब भी मशीन ऐड ऑन होती होगी सर, तो हर बार तो हम ESXi को रिबूट नहीं कर सकते सर, ना ही नहीं करते नहीं होंगे सर। हम नहीं भाई. वन टाइम, ओनली वन टाइम वी नीड टू डू दैट. हम्म, हमने जब से मेरा मतलब ESXi सर को ये था। इंस्टॉल किया है. वेट. हमने ESXi जब से इंस्टॉल किया, आई थिंक डे वन, दिस इज द डे वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनटीपी सर्विसेज. ओके, इसके पहले तो एनटीपी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया ना, नहीं टाइमिंग के किया था बारे में सर। बात की. बिल्कुल, राइट. बिल्कुल सर, सो बिल्कुल। अब अगर आप एक बार ESXi को रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर आप एक बार ESXi को रीस्टार्ट कर देते हैं, टाइमिंग आपकी सिंक्रोनाइज हो जाती है सक्सेसफुली. तो आप कितनी भी नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी टाइमिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। कनेक्टेड ओके, कनेक्टेड रहेगी. यस. ओके सर, ओके। इट रिक्वायर्ड ओनली फॉर फर्स्ट टाइम. इसको केवल फर्स्ट टाइम आपको रीसेट करने की, रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है सर। Clear? So this is all about the server controller required, domain controller required for our organization and our ESXi environment. Last इसमें point बचा है which is related to the install vCenter server. If you want to install vCenter server in our environment, in our ESXi, in our VMware environment, without domain controller we are unable to install vCenter server without Active Directory services. ओके,
ठीक है, अगर आपको vCenter सर्वर इंस्टॉल करना है so we must need to install the Active Directory domain services. बिना आईडी के नहीं हो पाएगा. Fine. Fine, sir. Fine. Next, so we will discuss about the vCenter server installation, but उसके पहले we should know about the usage of what we can say that how we can set up the network. We must need to know about the concept of network that can help us to manage the uh, networking of our environment, networking of our VMware environment. So I hope you're aware from the basic of networking, right? Yes, sir. So many of the components of networking, basic networking. Basic networking, basically, we need at least one network device like hub or switch, Mm-hmm. and for like we are using the networking, so we need multiple machines, and in which connected at least one NIC on each machine, Yeah. and those are machine connecting with the by help of the switch or hub we are not using nowadays. We are using switch, and based on the switch we can like create the network, and we can make the networking by help of IP addressing. In each machine we have to we have to give at least we have to give one IP address on the same network, so we can create the network. And I hope you have idea about the uh, VLAN kind of thing. VLAN we do use in I think distribution switch, standard switch. I think we do also use. Basically, in distribution switch there are multiple functions. So by help of we create the VLAN, and VLAN provide us like virtual network, virtual local area network. It is the full form of VLAN, and by help of this we can divide the ports. We can divide the ports by help of VLAN. जैसे कि पोर्ट के ऊपर हमें नाम सेट करना है किसी का, हर पोर्ट के ऊपर जैसे VLAN एक हमारे पास 24 पोर्ट का स्विच है हमारे पास, और जिसमें से हम चाहते हैं कि उसके अंदर 4 नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अलग अलग उसके नेटवर्क बनाना चाहते हैं हम लोग। तो हम उस कंडीशन में हर मतलब जैसे कि पहले 4 पोर्ट डाल दिए हमने ABC के अंदर, दूसरे जो है 5 से लेकर 8 पोर्ट तक हमने डाल दिए आपका XYZ के अंदर। ऐसे ही हमने इसी तरह से हमने थर्ड बना लिए, फोर्थ बना लिए, फिफ्थ बना लिए, ऐसे ही हम बना लेंगे। तो अगर हमें मल्टीपल स्विच कनेक्ट करने हैं तो हमें एक पोर्ट जो है आपका जो है आपका कोई भी एक पोर्ट, जैसे कि पोर्ट नंबर 24 हो गया आपका, वो दूसरे पोर्ट से कनेक्टेड करने के लिए, दूसरे स्विच से कनेक्टेड करने के लिए रख दिया हमने। तो Mm-hmm. जो है बेसिकली उस पर्पस के लिए हम वीलैन बनाते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि उनके बीच में कम्युनिकेशन ना हो। अगर कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पोर्ट एनेबल करना पड़ेगा, कमांड रन करनी पड़ेगी स्विच के थ्रू, तो आपका हम कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकली किया हुआ है मतलब CCNA वगैरह में, तो आपका पढ़ाई की हुई है सर CCNA तक तो Mm-hmm. उसमें हम लोग इसका यूज करते थे बेसिकली। तो दिस इज द like theory of networking and VLAN. So, am I right, sir, or something Correct. required Correct. to new things, sir? Correct. VLAN basically feature of our switch, not in standard and distributed switch, because VLAN is the protocol that help us to segregate the network.
अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज नेटवर्क को सेग्रीगेट करना है तो VLAN कैन हेल्प अस. We are trying to understand about VMware vSphere, right? VMware vSphere networking. हमारा जो एजेंडा है ना, we need to set up our network for VMware vSphere. तो दो तरीके की स्विचेस हम पढ़ेंगे. एक हमारे पास स्टैंडर्ड स्विच है, राइट, एंड सेकेंड वन इज DB स्विच, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. इज दैट करेक्ट? राइट सर. स्टैंडर्ड स्विच एंड DB स्विच में जो गैप है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Standard switch, which is responsible to manage the networking for ESXi host. Multiple ESXi host हैं. अब हर एक ESXi के पास अपना खुद का स्टैंडर्ड स्विच मिलेगा. Each ESXi contain our own switch. ठीक है, हर एक ESXi के पास अपना खुद का स्विच रहेगा. बट यहीं पे अगर हम बात करें अपने DB स्विच की, तो DB स्विच बेसिकली किसके लिए होता है? विच इज सेंट्रलाइज कंट्रोल. जब आप vCenter सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं, अपने सभी ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के साथ जोड़ते हैं, एंड यू वांट टू कंट्रोल द नेटवर्क ऑफ अवर इंटायर ESXi होस्ट. ये होस्ट हो गए, ESXi होस्ट हो गए, ये हमारा vCenter सर्वर हो गया. सो नाउ vCenter सर्वर कंटेन डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. ये क्या कंटेन करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच को कंटेन करता है, जो कि अलग अलग ESXi में VMs जो हैं उनको नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है. स्टैंडर्ड स्विच रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द नेटवर्क ऑफ ESXi. जो वर्चुअल मशीन है ना, इसके अंदर जो ESXi है, जो इसके अंदर वर्चुअल मशीन है, सिर्फ इनके लिए स्टैंडर्ड स्विच है. और ये हर एक वर्चुअल मशीन जो डिफरेंट ESXi होस्ट में अवेलेबल है, उनको मैनेज करने के लिए DB स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज द गैप. वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल. हमें इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके चेक करना है कि हाउ वी कैन डू दैट. इज इट ओके? राइट सर. राइट. So this is all about the basic of the domain controller, जिसमें हमने डोमेन के बारे में डिस्कस किया. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अवर नेटवर्किंग. सो अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में. इज दैट क्लियर? ओके. राइट सर. राइट. यहाँ पर सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो